So, Yeah. You are yes, very sir. much audible. Myself M.K. Srivastav, hereby welcome all valuers on this platform. As you know, we are doing the webinar on second Saturday of every month. But from this Saturday, this month, we are doing this on the first Saturday. This is our first chance on this new month. Today, my president, S.S. Das, is not available because he is suffering from throat infection. So that's why I've been given this responsibility to hold this webinar. So I once again welcome all the members. सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आज जैसे शर्मा जी का भी स्टेटमेंट आया कि कुछ गूगल मीट पे दिक्कत हो रही है एडमिट होने में। तो क्या और लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस तरह की दिक्कत अगर और लोगों को भी आ रही है तो उस पर एक सजेशन दोस्तों से चाहूंगा मैं कि अगर दिक्कत ज्यादा लोगों को हो तो फिर दूसरे किसी मोड पे स्विच ओवर करें हम लोग, वरना और तो ज्यादा जो उसको दिक्कत ऐसी नहीं हो रही है। नहीं तो उनके नेटवर्क का इशू होगा, अदरवाइज ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमें भी कोई ऐसी दिक्कत है। और साथ साथ नेटवर्क डाउन हो जाता है, दिक्कत आ जाती है। हाँ, कई बार और क्योंकि आज का थोड़ा सा रेनी सीजन भी है, उससे भी थोड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क की वो। यस जी श्रीवास्तव जी। अच्छा, दूसरा था कि कुछ इम्पैनलमेंट का भी एक इशू आ रहा था, लोगों के लेटर्स नहीं आ रहे थे, कुछ एसबीआई का भी इशू आया था। तो अब क्या स्टेटस आया है उसको भी हम लोग देख लें एक बार, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आईबा को आप लोग रिप्रेजेंट करें, हम लोग उसके लिए आगे बढ़ें। इसी तरह से पीएनबी का भी कुछ आगरा लोगों का आ रहा था कि वहां भी कुछ समस्या आ रही थी, अब शायद शॉर्ट आउट हो गई होंगी वो। और आज के मैटर पे तो मैं तो सबसे पहले दास साहब को उनको मैं शुभकामना दूंगा कि जितनी जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हों और फिर से हम लोग का मार्गदर्शन करें इस प्लेटफॉर्म पे आके। हम लोग सभी की प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। अच्छा, आज मैं भी थोड़ा सा एक रिलेटिव हमारे एडमिट थे पीजीआई में लखनऊ, तो मैं इस तरह पीजीआई से ही मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। अब मैं बहुत तो टाइम नहीं लूंगा। अब मैं मुकेश कुमार जी जो अपने ऑल इंडिया आईईआई के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि दो शब्द कहें इस मीटिंग के बारे में। मुकेश कुमार जी। थैंक यू एम.के. श्रीवास्तव जी। It's my matter of pleasure. I feel immense pleasure to welcome you all honorable members of All India Valuers Association as well as Nation of Engineers Kanpur Center. Today's talk is planned on the topic of environmental social governance impact on valuation, a paradigm shift. So this is very important topic to discuss in present era. If you need of present era, all engineers, architects, valuers, bankers has to understand the importance of ESG. I hope engineer Anand Singh will take all the boxes of ESG and he will cover this topic in all aspects. He may touch some bottleneck aspects of ESG which are really slowing down the system. Institute of Engineers is well connected with IVA and always appreciate the efforts. They are continuously organizing the webinar on second Saturday of every month. As Mr. Astaji already explained, due to some unavoidable circumstances, this month they are organizing on first Saturday of the month. So I know personally Engineer Anand Singh. He is very good speaker, and I hope he will cover the all aspects of ESG and make his talk very interesting and meaningful to the all participants. So once again, I welcome you again on behalf of Institute of Engineers as well as IVA to attend this webinar. Thank you very much. Now I request Vice President Anand Singh
to please take over the charge and give the brief introduction of our guest speaker, Mr. Chandresh Bahal. Anand ji. Anand is not here. Mr. Anand Singh. Anand ji, you are not audible. Anuj ji, please call Mr. Anand. To conduct our this webinar on a topic ESG. ESG factor, the impact of ESG factor on the valuation report. Because this is slightly all the words ESG ये सारा हम लोगों का सुना हुआ है जो चीज है. तो सबसे पहले तो I want to say token of love for Mr. Shyam Sundar Das ji that he has given me an opportunity to just deliver my webinar on this topic ESG. और सारी जो हमारी टीम है आईवा की we have worked a lot just to discover the new thing. Our main goal is to discover the new thing. Right? तो ESG से हम लोग समझते क्या है इसके विषय में थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर दूं. राइट. तो ESG देखिए मैंने जो टॉपिक का वो लिया है शीर्षक जो लिया है द हेडलाइन ऑफ द टॉपिक इज ESG factor impact on valuation a paradigm shift. मीन्स ये पैराडिगम शिफ्ट का अर्थ क्या होता है. तो पैराडिगम शिफ्ट मीन्स क्या होता है. तो चेंजेस इन प्रोफेशन, ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग. जैसे हम लोग ये मानते हैं कि इफ आई सेड कि पैराडिगम शिफ्ट मीन्स ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग समथिंग और लुकिंग एट समथिंग. मतलब एक नया विजन, एक नई तरीके से किसी चीज को हम लोगों को देखा है. राइट. और यहाँ पे ESG means the factor of ESG factors impact on a valuation report. किस तरीके से ESG तीन ये वर्ड है E, S और G. ये तीन अल्फाबेट है ESG. इनका क्या फुल फॉर्म है पहले मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं आगे प्रोसीड करूँ. E से E stands for environmental. Environmental means पर्यावरण. Environmental impact हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे but here in this webinar I have restricted my this topic to the green building only, to the sustainable development and the sustainable building only. मैं उस पे नहीं जा रहा कि कोस्टल साइड पे कोई हमारी बिल्डिंग है तो उसका वैल्यूएशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई स्लम एरिया में हमारी बिल्डिंग है तो उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. तो here we are going to discuss a topic on a green buildings, the companies or the buildings which are green building rated, right? E stand for environmental, where I am supposed to give you my vision on green buildings, right? And then the word S stand for social. S का मतलब है social. हमें पता है व्यवहारिक. social मतलब व्यवहारिक चीजें हैं. social impact क्या पड़ता है किसी वैल्यूएशन रिपोर्ट पे इसके. फिर एक वो है फिर मैंने ली है G, ESG. फिर अल्फाबेट है G. G stands for
गवर्नेंस, जी का मतलब है गवर्नेंस, कि कार्य की विधि क्या है, कार्य कैसे किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। गवर्नेंस डजंट मीन्स गवर्नमेंट, गवर्नेंस का मतलब ये है कि कार्य प्रणाली क्या है और किस तरीके से कंट्रोल किया जाए इसके कार्य। These are the three words, these are the three alphabets which I have amalgamated it out, और इसको एमलगेशन करके मैंने ESG बनाया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इस इवैल्यूएशन पे क्या पड़ता है, रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रीन बिल्डिंग, सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है और गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले मैं इन तीन पिलर्स के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि इन तीन पिलर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसी वैल्यूएशन रिपोर्ट में। सपोज कोई आज की डेट में ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड बिल्डिंग हमें मिली, जिसमें हमें ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेशन भी दे दिया। सपोज हमने किसी ने हम लोगों को भी ऑल आर वर्किंग और बैंक्स के लिए काम करता है, मी आल्सो आई एम आल्सो वर्किंग फॉर द बैंक्स एंड फॉर द कस्टमर्स, लोकल कस्टमर्स आई एम वर्किंग फॉर आपका इनकम टैक्स का वैल्यूएशन है, इंसॉल्वेंसी के लिए भी आई एम वर्किंग। तो अब मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिला कि किसी कंपनी की वैल्यूएशन, आई हैव टू डू द कंपनी वैल्यूएशन, राइट। What are the different documents उन्होंने मुझे प्रोवाइड करे, I just focus on that, and in that context I have developed a topic ESG impact. They have added to sanction map, added to the chain deeds of the property, added to all the sanctions from all the authorities. उन्होंने मुझे एक green building certification भी दे दिया. That green building certification they have given it from, that building is certified from IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, वहां से सर्टिफाइड बिल्डिंग तो प्लेटिनम रेटेड। अब इस चीज पे हम लोगों को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वैल्यूएशन पे, जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हम लोग सीधे ही वैल्यूएशन मैट्रिक्स, जब भी हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं तो हम सीधे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, फाइनेंशियल मैट्रिक्स हम लोगों के दिमाग में सडनली, इफ यू गॉट एन प्रोजेक्ट of some company, you have to give the valuation report for some company, initially आपके दिमाग में एक ही टॉपिक स्ट्राइक करता है, that is a financial methodology, financial metrics आपके दिमाग में आती है। उस फाइनेंशियल मैट्रिक्स में आप ये देखते हैं कि उसका रेंट पर एनम क्या आ रहा है, वैकेंसी रेट क्या है उसका, फिर उसका आपको डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड वहां पे क्या है। और वो ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग है तो मेरे को उसके विषय में भी कुछ सोचना पड़ेगा कि ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग इज ग्रीन सर्टिफाइड, ग्रीन रेटिंग है, उसके विषय में क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसमें क्या आएगा, उसकी वैल्यू पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहा था। तो आज की डेट में देयर इज रियल एस्टेट मार्केट है, देयर इज अ लॉट मोर, बहुत बड़ी मार्केट है पैन इंडिया लेवल, देयर इज अ लॉट मोर मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट है, देयर इज अ लैंडस्केप ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट। तो इन्वेस्टर्स ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इफ द बिल्डिंग इज ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड, तो ज्यादा इम्पैक्ट, ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में हमारे आते क्या क्या चीजें हैं, ये हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझें कि इन्वायरमेंटल सर्टिफाइड बिल्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड हु आर द फर्म्स, हु आर द बेसिक कंसर्न जो हम लोगों को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन देते हैं। इनिशियली तो लीड देता था LEED, एल पहला अल्फाबेट L, then E and D। L stands for आपका लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन, ये वर्ल्ड वाइड था, जिसके लिए हम लोग जेनेवा कॉन्फ्रेंस भी होती है। मिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दे आर जस्ट कीप ऑन विजिटिंग दीस कन्वोकेशंस एंड ऑल, उसमें भी बातचीत चलती रहती है। तो लीड सर्टिफाइड सबसे पहले बना था यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। फिर हमारा आ गया इंडियन IGBC, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आ गया, उससे भी सर्टिफिकेशन है। लीड एंड IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में सर्टिफिकेशन रेट होती है, उसमें हम लोग रेटिंग देते हैं आपकी। इसमें तीन तरीके से रेटिंग करी जाए। इसमें हम लोग की सबसे पहले सर्टिफाइड होती है कि ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है, लीड सर्टिफाइड। तो अगर हमारा 50 पॉइंट्स है तो लीड सर्टिफाइड माना जाता है या IGBC सर्टिफाइड। फिर उसके बाद हमारी आती है सर्टिफिकेशन, उसमें आता है अगर 60 पॉइंट्स है, 50 से ज्यादा, मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर टेकिंग दीस पॉइंट्स ओनली इन ब्रीफ। मैं उसके जस्ट ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट।
60 है तो सिल्वर हो गया, 79 हो गया तो वो हो गया आपका गोल्ड हो गया, एंड टॉप मोस्ट इज अबाउट 80 पॉइंट्स इज योर प्लेटिनम सर्टिफाइड बिल्डिंग, प्लेटिनम रैंकिंग दी जाती है। तो इसमें रैंकिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को साइट सिलेक्शन हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन का क्राइटेरिया होता है, मटेरियल्स, व्हाट आर द डिफरेंट मटेरियल्स वी हैव यूज्ड, सस्टेनेबल मटेरियल यू हैव टू यूज इट, व्हाट द साइट इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द साइट, द वाटर कंजर्वेशन सिस्टम यू हैव यूज्ड, और आपने एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, CO2 इमिशन कितना है, if the less is the CO2 emission, the more is the certification. This is the point one should have always note it out. जब भी ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की बात होती है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जितना लेस होता है उसमें सर्टिफिकेशन के पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं, राइट। अभी हम लोगों ने देखा लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, दिस इज द वर्ल्ड वाइड सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन बिल्डिंग। उसके साथ हमारा जाता है IGBC है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है। एक अब आ गया ग्रह, GRIHA, फुल फॉर्म इसका होता है ग्रीन रेटिंग इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, मीन जो टाउनशिप्स को इसमें वो दिया जाता है, इसमें सर्टिफिकेट पॉइंट्स दिए जाते हैं, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट फॉर ग्रीन बिल्डिंग। ये लोकली हमारी पैन इंडिया लेवल है ग्रह। और आज की डेट में हम लोगों ने एक, आप लोगों ने वी मस्ट हैव हियर्ड ए वर्ड जिसका फुल फॉर्म भी मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एसोचैम। एसोचैम एक कंसर्न होती है जो हमारी गवर्नमेंट एंड आपकी इंडस्ट्रीज के बीच में काम करती है, एक नियुक्ति है। एसोचैम मींस एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ये भी आज की डेट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रेटिंग देने लगे हैं। दे आर आल्सो बाय गिविंग द रेटिंग टू द बिल्डिंग्स, एसोचैम दे आर आल्सो गिविंग द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग टू द कंपनीज, टू द कंसर्न्स, टू द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज डजंट मींस जो हमारा प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उसको हम इंडस्ट्रीज नहीं कह रहे हैं। इंडस्ट्रीज पे सारी आ गई, हॉस्पिटल इंडस्ट्री भी आ गई, होटल इंडस्ट्री भी आ गई, आपकी ऑफिशियल इंडस्ट्री भी आ गई। ऑल द इंडस्ट्रीज आर गवर्न्ड अंडर एसोचैम, ASSOCHAM, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। इसको हम लोग इन ब्रीफ भी कहते हैं, वी जस्ट इलैबोरेटेड, आई कैन जस्ट ब्रीफ इट आउट। एसोचैम में क्या होता है कि दिस इज, वी कैन से इन माय लैंग्वेज हम लोग ये कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, thinking architect of the industries, means whatever the problems the industries are facing, the companies are facing, what they are doing, they are just delivering their problems to the ASSOCHAM. ASSOCHAM can give these topics and then deliver it out to the government. Then only that things, any norms functioning करता है। Nowadays ASSOCHAM is started giving green building rating, right? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में जस्ट फोकस इट आउट, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंटल में मैं ग्रीन बिल्डिंग को ही लेकर कर रहा हूँ, जहाँ पे वाटर आपका एनर्जी कंजम्पशन कम हो रहा है, एनर्जी कंजम्पशन कम हो रहा है, एफिशिएंट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज हो रही है, आपका वाटर पोटेंशियलिटी एज पर सस्टेनेबल नॉर्म्स चल रहा है, आपके जो मटेरियल यूज करे हुए हैं दे आर एमिटिंग लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। The plantation, we all are talking, आज के सिनेरियो में, coming days, we all are thinking of it, कि why not we plant a tree? Everyone has to plant that tree. Why? Just because, just to reduce the CO2 emission, जो emission हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हमारे लिए हानिकारक है, इतने AC लग रहे हैं, आज की डेट में कंजर्वेशन सिस्टम ज्यादा चल रहा है, तो इससे दिलचस्पी ही जो ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो होगा। एनर्जी एफिशिएंसी है, इसमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, लो कार्बन इमिशन है, एंड गुड फॉर द हेल्थ ऑफ वर्कर्स। नाउ लुक एट दिस, गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। जो भी एम्प्लॉय, whosoever working for the company, they are taking the companies are taking the services of these workers
they are much more satisfied, right? तो more investors are coming it out, स्टेक होल्डर्स ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो हमारा मार्केटेबिलिटी ज्यादा, पहले हम लोग जो हम अपने सीधे सीधे रेंटल असेसमेंट से वो करते थे, अपनी वैल्यूएशन को सर्टिफाइड कर देते थे, तो इसमें हमें ज्यादा स्कोप मिलेगा और ज्यादा हमें डिमांड मिलेगी। अब आप तो देखिए कि अभी I have just gone to Google it out. So what are the different green building certified buildings here in UP? तो सबसे पहले मेरे को जो रेटिंग मिली हमारे कानपुर की रिलायंस, ये जो हमारे कानपुर में जो रीजेंसी हॉस्पिटल है, दिस इज एसोचैम ने इसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड किया हुआ है। अगर सरप्राइज, एसोचैम ने इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला है और एसोचैम ने इसे सर्टिफाइड किया एज पर द डॉक्यूमेंट्स विद मी, एसोचैम ने करा है। जो कि एसोचैम हैज seen the certain constraint, they have certified it. Now I have just used a word, good for the health of laborers and workers working for the industries which are green building certified. Why it is? क्योंकि रिन्यूएबल यूज ऑफ एनर्जी है और CO2 इमिशन कम है, तो हमारा ऑब्वियसली एनवायरनमेंट इज गुड, एनवायरनमेंट इज इको फ्रेंडली एंड इट इज गुड फॉर द हेल्थ। तो आज के जो आई हैव जस्ट स्पोकेड आउट रियल एस्टेट लैंडस्केप, रियल एस्टेट लैंडस्केप, लैंडस्केप इज अ वर्ड आई एम यूजिंग कि रियल एस्टेट लैंडस्केप का मतलब क्या है कि रियल एस्टेट मार्केट का फैलाव, रियल एस्टेट लैंडस्केप में more and more investors are coming, more and more stakeholders, they are more interested to invest in a building, to invest in a property, to invest in a company which is your green building certified. जो green building certified होता है उसमें environmental friendly होता है। आज की डेट में I have used the word paradigm shift in a market, paradigm shift, जो नई सोच ग्रीन बिल्डिंग की है तो उसके ऊपर इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा, आपके लखनऊ में भी देयर इज अ बिल्डिंग जो काफी, जो यहाँ पे लखनऊ में हमारी जो IT सिटी है, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दे आर ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड, तो उसको इन्वेस्टर्स बहुत मिलते हैं। Not more investors are coming to invest into that company or that building जो green building certified है, क्योंकि this is the era where we all are looking for the sustainable development, we all are looking for the sustainable, we are top of, we just mentioning it out in our discussions also, यार कितने ज्यादा मेट्रो रेलवे बन रही है, कितने ज्यादा ट्रीज काट दिए गए कानपुर के अंदर और आपके लखनऊ के अंदर, तो ultimately we have suffered a lot the heat which we have seen this year किस तरीके से आई। This is somehow I'm not totally correct, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि थोड़ा बहुत तो ये इम्पैक्ट भी पड़ा, ग्रीन बिल्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी इम्पैक्ट पड़ता है चीजों में। तभी लीड जो डेवलप हो गई थी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, जो IGBC, ये जो आपकी US GBC ने करा था, यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो बनी थी, वो पहले बन गई थी। हमारी जो IGBC है दैट इज इंस्टिट्यूटेड लेटर ऑन, काफी समय डिकेड्स के बाद हम लोगों को समझ में आया कि दैट वी हैव टू नॉट ओनली प्लांट द कंक्रीट जंगल्स, कंक्रीट के जंगल्स नहीं बनाते, हम लोग को कुछ प्लांटेशन पे भी इन्वेस्ट करना है, फोकस करना है। तो इन these types of properties, definitely the impact of environmental impact on the building is a lot more, and the valuation definitely enhanced because of green building certification. उसकी valuation 100% बढ़ेगी if the building is a green building certified. We have to add that kind of some sort of a percentage, some sort of a criteria for the green building. ये लेना पड़ेगा valuation में, इसी context में देखते हैं। This is a different topic. I can later on
somehow in some other webinar, I just give you some idea of how to develop, how to calculate, how do we calculate the valuation of a green building certified मैडम building. जाने बोले हैं ना, मैडम भी जा रहे हैं ना। I have restricted with the topic only. हाँ, कहीं मंदिर जाएंगे, बांध लेंगे वो दवा पता नहीं क्या कपड़े लेना। Not only how to make certain permutation, how do I increase the valuation for this building and कैसे ये बढ़ती है, कैसे बढ़ती है. This is a different issue. We all are qualified and we know how much, how do we have to consider. Later on we can think of it कि किस तरीके से पुराने अकाउंट्स इसको देखते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं. Now, so I have said कि for ESG impact building, environmental, social and governance, these three alphabets, these three words, जो एक amalgamated words certified, जो is कोई भी any property who has got the consideration of ESG, its valuation is too high, we can't think of it, कितनी बढ़ सकती है उसकी valuation. Right? This is the impact. This is the current scenario. This is the current scenario of the market. ESG impact to the most of the investor, most of the stakeholders, most of the regulators. Now, mostly the regulators, mostly the investors, mostly the stakeholders, they are just looking into the criteria. We are going to be supposed to merge it out or supposed to give the valuation, supposed to buy it out और मैं इस बिल्डिंग को ओनरशिप ट्रांसफर ले रहा हूँ, तो इसमें ESG सपोर्टेड है या नहीं है? If that building is ESG supported, definitely more and more chances of getting your more value. This real estate landscape scenario has been changed a lot, which we have to understand with respect to these three familiar words. We are using environmental supported building, we are using social impact on building, we are using governance support on building. तो बात तो करते हैं कि ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड, ये environmental friendly building है. Building is environmental friendly. What is the constraint testing of it? If you are talking about environmental friendly building, we have to give certain constraint. इसमें वाटर कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन क्या है, ज़्यादा कम. इन लॉन्ग टर्म हम देखेंगे द एफिशिएंसी, जो कॉस्ट एफिशिएंसी है ग्रीन बिल्डिंग में, रनिंग कॉस्ट एफिशिएंसी इज लाइकली लेसर देन द बिल्डिंग्स नॉर्मल बिल्डिंग. ग्रीन बिल्डिंग्स में कम खर्चे होते हैं, एक बार बनाने में जरूर ज़्यादा खर्चे होते हैं, बट लेटर ऑन इसके जो हमारी रख रखाव के खर्चे हैं वो कम होते हैं. सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स have been used, तो उसमें हमारी बिजली का खर्चा कम होगा. राइट? वेंटिलेशन सिस्टम, द नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम, if we are talking of a green building, there is a natural ventilation. Right? Being an architect, I just try to incorporate very few constraints in our buildings, that we have got a natural ventilation, we have got a light, sunlight entering into the building, the solar panel system, just to reduce the cut of the cost of the electricity. And water potentiality, हम लोग रोज कहते हैं there is a rain water harvesting in a building. It is also a part of green building certification. ये भी green building certification का एक पॉइंट है जिसमें हम लोगों को इसके भी पॉइंट्स मिलते हैं. ऑलमोस्ट 15% रेटिंग हमारी बढ़ जाती है वाटर पोटेंशियलिटी है हमारी बिल्डिंग में. 15% हमें रेटिंग मिल जाती है. सर्टिफिकेशन तो 50% पे we can get the certification. But if you are going for a silver, platinum, gold ranking, I want that my building should be gold ranking, my building should be platinum ranking, why not silver ranking? Platinum is the topmost ranking, gold is next to it, और उसके नीचे है आपकी सिल्वर. ये रैंकिंग सिस्टम चलते हैं. जबकि ग्रह में पॉइंट सिस्टम चलते हैं. दे हैव गिवन ग्रह में पॉइंट सिस्टम देते हैं 28%, 40%, 50%, 60% कंपेयर टू द साइट सिलेक्शन, द एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर पोटेंशियलिटी, आपकी एनर्जी कंजर्वेशन कैसे होगा, CO2 इमिशन, सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसके मिलते हैं.
तो I think I have just conveyed out the environmental impact. I'm just talking of the environmental impact in the building. Initially जब environmental impact की बात हम लोग करते थे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आ जाता था कि यार इंडस्ट्रियल अप्रोच बिल्डिंग है, सीधे ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल में अप्रोच है तो इसमें पॉल्यूशन के कारण कम होगा। तो मैं उसके ऊपर नहीं डिस्कस किया, मैं सिर्फ ग्रीन बिल्डिंग पे ही अपनी बताया, जिससे मोस्टली the more investors are coming, more regulators are coming, more stakeholders are coming. I think the real estate market is more. Right? Now I'm talking of social impact. What are the social impacts, social factors which impact our company valuation? Social की बात जब हम लोग करते हैं, social व्यवहारिक, social in short हम लोग कहते हैं व्यवहारिक। सोशल जस्ट सेइंग कि व्यवहारिक सोशल इम्पैक्ट बिल्डिंग का क्या है। सोशल इम्पैक्ट से हम लोग अब सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सराउंडिंग, सोशल इम्पैक्ट सराउंडिंग, व्हाट द सराउंडिंग ऑफ दैट बिल्डिंग। मैं आईटी सेंटर में बैठा हुआ हूँ और आईटी सेंटर में आई गॉट ए टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, the company Tata Consulting Services in a IT park, डेफिनेटली उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं वहाँ एक सिनेमा हॉल बना दूंगा तो शायद वहाँ पे कम बायर मिलेंगे, इन्वेस्टर कम मिलेंगे, या मैं वहाँ कोई इंडस्ट्री लगा दूंगा, या कोई दुकान की बात करूंगा। मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। आईटी सेंटर जो सर्टिफाइड है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड आईटी सेंटर है, उसका एफआईआर भी ज्यादा मिल रहा है और उसमें गवर्नमेंट से all the building is following all the protocols of the government. If you are saying this, if the building is following all the protocols of the government norms पे बनी हुई है, उसके bylaws ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट है, आज की डेट की कमिंग सिनारियो की बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली मेरे को उसके अंदर ज्यादा इन्वेस्टर, रेगुलेटर्स, बायर्स, स्टेक होल्डर्स मिलेंगे, सोशल इम्पैक्ट ज्यादा होगा। सोशल इम्पैक्ट हम इससे भी समझ सकते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनी, सपोज हम किसी कंपनी की वैल्यूएशन करने जा रहे हैं और उस कंपनी का बाहर मार्केट में व्हाट इज द, जैसे ये दीज आर द टेंजिबल इम्पैक्ट जो हमें फिजिकली देख रहे हैं, मुझे दिख रही है बिल्डिंग को, मैं दिख रही है टेंजिबल, तो ये कुछ इंटेंजिबल इम्पैक्ट्स है कि मार्केट में माउथ फीडिंग क्या है, बिल्डिंग सोशली माउथ फीडिंग क्या है उस बिल्डिंग। We have to invest in that, उस बिल्डिंग के शेयर्स आप खरीदिएगा, उस बिल्डिंग के शेयर्स कभी लॉस नहीं होते, जैसे बोलते हैं। The workers की security of the job is more, social impact है, is also social impact, the job security is more, they are offering affordable housing to their employees, they are offering hospitals facilities to the employee, they are offering pension, much more pension system for the employees. This is an example only. I'm not just bringing down these kind of things. These are the social impacts. While we are calculating it out the valuation report, we have to see how the social impact on the company. The company में क्या amount building है, where it is located. It is located in the IT center. It is located in the IT park. The building is located in the IT park. It has got a much more value than कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहीं पे आप बाहर बना दिया जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो थोड़ी सी कमी होगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को अडेयर, इट इज नॉट अडेयर टू द गवर्नमेंट प्रोटोकॉल। गवर्नमेंट कहती है कि यहाँ का लैंड यूज जो है रेजिडेंशियल है। सपोज आई कैन पुट ए ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स देयर इन ए रेजिडेंशियल मास्टर प्लान अलॉटेड एरिया, तो गवर्नमेंट प्रोटोकॉल को नहीं ओबे करवाना। आई कैन गेट छोटे मोटे कस्टमर मुझे मिल जाएंगे, वी आर गिविंग द वैल्यूएशन रिपोर्ट, छोटे मोटे कस्टमर मिल जाएंगे, बट आई कैन गेट ए लेस इन्वेस्टर्स, लेस रेगुलेटर्स, लेस स्टेक होल्डर्स टू इन्वेस्ट इन दैट बिल्डिंग or that company as compared to the company which is located is a computer company, software company, which is located in an IT park. It has got lot more investors, stakeholders, and more investors, stakeholders, regulators, much more. Right now,
In a brief introduction, you can understand what does the word means. Environment. E stands for environmental. S stands for social. Now let us come to the hard alphabet G. The alphabet G stands for governance. I have just initially said that governance doesn't mean a government. Initially I have said the governance doesn't mean a government, but somehow it is related with the government only. Somehow it is related to the government. Governance means who is holding the management of a company. How does the management of a company react? उस कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डिफॉल्टर तो नहीं है कंपनी का मैनेजमेंट, bankrupt तो नहीं है कंपनी का मैनेजमेंट. The management of a company is a bankrupt. Can I get the more buyers? I can't get the more buyers. My dear fellow friends, I won't get the more buyers. This is the stigma with that management. So governance means, in Hindi we can say governance means शासन की विधि. किस प्रकार से किसी कंपनी को कोई मैनेजमेंट चलाता है, MD, CMD, whoever is linked to the building, whoever is linked to that company management staff, किस तरीके से करता है, वो सोशल इम्पैक्ट देता है नहीं देता, वो अपने जो उनके वर्कर्स हैं, the workers who are working for the company, can they all the workers they are satisfied with their management? वो डिसीजन मेकिंग है या नहीं है. G stand for governance. The management system is in fact fully giving the reaction to the results or not. वो रिएक्ट करता है नहीं करता. मैनेजमेंट ऐसा तो नहीं, मैनेजमेंट बिल्कुल चुप बैठा हुआ है. किस तरीके से चीजों को करना है, क्या डिसीजन लेने, डिसीजन मेकिंग है, दैट इज अ गवर्नेंस. तो हम लोग जब भी किसी कंपनी को वैल्यूएशन करते हैं तो मेरे दिमाग में गवर्नेंस भी देखी जाती है कि कहीं उसके ऊपर कोई कर्जे तो नहीं है, ज्यादा लायबिलिटीज तो नहीं है उस कंपनी के ऊपर. मीन्स ज्यादा उसके ऊपर लायबिलिटीज तो नहीं है उस मैनेजमेंट पे, उस कंपनी पे. दैट इज द वर्क ऑफ ए गवर्नेंस. उसके जो मैनेजमेंट है उस पर तो डिपेंड करता है. मैनेजमेंट फ्री फ्लोइंग चल रहा है, मैनेजमेंट के शेयर्स आज की डेट में मार्केट में बहुत अच्छे उठे हुए हैं. द स्टाफ इज वेरी मच सेटिस्फाइड, एम्प्लॉइज आर गेटिंग, they are much more satisfied with the management staff of the company. That's why the governance system is good. The governance is good. If the governance is good, the results are okay. ESG impact. This is the ESG impact which I was trying to elaborate in my this webinar. कि किस प्रकार से ESG impact से किसी कंपनी की वैल्यूएशन इम्पैक्ट करती है. Now, suppose I have to give a valuation for a company. So I am considering it. I have to give a valuation for a company. It is a software company, and that software company, the location, the site selection. First of all, the site selection. The site is located in that allocated area, which is allocated by the development authority or the whoever is the governing body. They have allotted it for the IT. Working of an IT building only, official complex only, right? जब हम लोग उस तरीके की बिल्डिंग हमारे पास आती है तो हम उसका लैंड यूज देखते हैं, हम उसको देखते हैं कि भाई ये इसके लैंड यूज में ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा प्रोटोकॉल. तो हम उसको समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में बिल्डिंग बनी हुई है तो उसका प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है. बिल्डिंग इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई है तो हम लोग एक वो चीज़ को हम लोग सेंक्शन मैप से भी देख लेते हैं. एक सेंक्शन मैप हम निकालते हैं, हम देखते हैं कि भाई रेजिडेंशियल पास था लेकिन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसके अंदर मिटिगेशन कहते हैं ना, रिस्क ज़्यादा बन जाते हैं, रिस्क ज़्यादा होती है. ठीक है. तो जो ESG कंपाइंड प्रॉपर्टीज होंगी या कंपनीज होंगी उसमें रिस्क मिटिगेशन you must have heard the word risk mitigation. लोगों ने ये शब्द सुना होगा.
हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं रिस्क मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब उसमें लेस विवाद कम है, रिस्क कम है, राइट। तो हम लोग जैसे किसी कंपनी की वैल्यूएशन जब हम करते हैं तो हमें बड़े ब्रॉडर, हमें माइक्रो लेवल पे नहीं सोचना पड़ता, हम वी हैव टू थिंक इट ओवर इन ए मैक्रो लेवल, बड़े लेवल पे हमें सोचना पड़ता है। कि हम ये नहीं कह सकते कि एक कंपनी के वैल्यूएशन करने जा रहे हैं हम छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, माइक्रो लेवल पे सोच रहे हैं। वी हैव टू थिंक इन मैक्रो लेवल, इन ए ब्रॉडर लेवल, बड़े लेवल पे देखना है। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, उसकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बट हम उसकी वैल्यूएशन देने जा रहे हैं बहुत अच्छी है, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन इज दैट बिल्डिंग फॉलोइंग द प्रोटोकॉल ऑफ ए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करती है, लैंड यूज जहाँ पे जिस लैंड यूज के लिए वो अलोकेटेड है उसके लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो जो हम लोग एक बैंक की वैल्यूएशन करते हैं तो इन बैंक की वैल्यूएशन में तो हम लोगों को पता है कि हम एक बैंक की वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो ठीक है, इसका हमसे मैनेजर कहता है दिस इज ओके, इसका बहुत अच्छा ट्रैक है, ये लोन हमें करना है। डिसाइड्स की वो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट का फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट statute for which we are working. This statute is different and this statute is different. We are going to the resolution of the company statute is different. 1912 दोनों नहीं, डिफरेंट नॉर्म्स पे और डिफरेंट स्टैट्यूट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम बैंक की वैल्यूएशन में ये स्टैट्यूट इज डिफरेंट, उसमें ये है कि हमें लैंड एंड बिल्डिंग का हमें एक फॉर्मूला पता है जो का वैल्यूएशन कोई लैंड एंड बिल्डिंग, इवन जो हमारे सामने जो हमसे वैल्यूएशन ले रहा है उसे भी इतनी ही नॉलेज है भैया इतना लैंड एंड बिल्डिंग है। इफ आई टॉक ऑफ उससे ईएसजी इंपैक्ट के बारे में मैं बात करूंगा या कुछ कहूंगा, वो मेरे को आई थिंक यही कहेगा कि छोड़िए चंद्रेश जी, आपसे काम बताकर एक्स वाई जेड को मैं काम करूं, राइट। तो व्हेन वी आर डूइंग वैल्यूएशन फॉर द कंपनीज, ईएसजी इंपैक्ट को मेरे को साइमल्टेनियस मेरे साथ दिमाग में चलता है कि ईएसजी इंपैक्ट भी है। हमने अपने कानपुर के अंदर बहुत कम ईएसजी इंपैक्ट वाली बिल्डिंग्स देखी, क्योंकि यहाँ पे there are very less buildings which are green building certified. I have just googled, I said the Lucknow you find a buildings, in Noida also you can get lot of buildings which are green building certified, काफी मिलेगी आपको आई से। हाँ, यहाँ पे हमें कम मिलती है तो हमारी सोच में वो चीज ही नहीं है। That's one of the reason I have used the paradigm shift मतलब कि न्यू वे ऑफ लुकिंग समथिंग, नए तरीके से किसी चीज को देखना। मैंने अपने दिमाग में डाला कि व्हाई नॉट आई डिस्कस ए टॉपिक इन विच देयर इज समथिंग न्यू, इनोवेटिव थिंग्स आर कमिंग विद अस। Maybe I have got a very maybe I am wrong, but I want to, when I have got an opportunity to just deliver this webinar, so I have decided to choose some topic which is something new in that topic. So I have written paradigm shift in a factors. paradigm shift मतलब न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, नए तरीके की चीज। और इसका आप नहीं रहोगे, यू कैन सी कि once I was being in Hyderabad and आप नहीं रहोगे, I have seen इनवाइट ही नहीं हुई है, क्या करें पानी कौन भी पिछली बार भीगे थे भैया, पिछले पूरा भीग गए थे। अरे ये तो सरप्राइज अब देखेंगे कि then I have googled it is written in बाहर लिखा है what it is a green building certified, there is a history sort of a history company that we tally green building certified. So at that time I was not aware of these things, मैं इतना ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में भी नहीं जानता था। I was a student at that time. I was studying like architecture last year. I was a student at that time,
and I was doing my thesis on certain topic. For that, I have to visit some case studies. I was doing there, or I have inquired of so many number of things there. I have just met with the employees who are working. I have met with the class C class employees, A class, B class, C class, D class. सारे employees से मैंने introduction किया था. Because I have to give some. I have to. At that time I was looking for some designing aspects. वो हम लोग देख रहे थे. In the meantime मैंने इन सब चीजों को भी employees के सामने employees के लिए बोला कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. मैनेजमेंट has offered us housing. They are just looking after our hospital facilities and यहाँ पे जो भी सिस्टम है सब सोलर इफेक्टिव है. सोलर से लाइट जल रही है, सोलर से ये जल रहा है. अपने आईटी में भी, आईटी कानपुर में भी वो भी आपकी सोलर पैसे सारा सिस्टम यूज हो रहा है उसमें. तो मैंने रिलायंस आई come to know कि सस्टेनेबल बिल्डिंग है वो. एट दैट टाइम जस्ट टॉकिंग ऑफ बहुत पुरानी बात मैं आपसे कर रहा हूँ. मैंने देखा कि वहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं. और अगर मैं आज की डेट में उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन देता हूँ तो डेफिनेटली इस काइंड ऑफ ये इम्पैक्ट मेरे दिमाग में तो आएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे दिमाग में इम्पैक्ट हमेशा स्ट्राइक करेगा ही करेगा कि भाई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग है, इसके खर्चे भी ज़्यादा हो. दिस आई कैन इलॉबरेट इन सम अदर वेबनेयर कि किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते हैं ESG सपोर्टेड बिल्डिंग्स. The method is methodology is slightly different. इसमें in brief मैं आपको बताता हूँ. इसमें what I have done a matrix. एक मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाली कि इनकम अप्रोच से जब हम लोग बिल्डिंग की किसी वैल्यूएशन देते हैं, जबकि आज भी मेरे से बैंक्स वगैरह कहते हैं कि आप इनकम अप्रोच बिल्डिंग दे दीजिए, और तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, रेंट आता है दिमाग में, और उसी हिसाब से मैं रेंट पर एनम ले करके उसका रेंटल क्या आ रहा है, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट क्या है कि यार ऐसा है आज एक मान के 100 रुपये स्क्वायर फीट का रेंट आ रहा है, कल ये रिलायंस वाले चले गए तो दूसरा जो आएगा वो भी 100 रुपये तो दे ही देगा. ऑक्यूपेंसी रेट कितना है? ऑक्यूपेंसी रेट वो यही है, महीने भर खाली रहेगी तो चढ़ जाएगी. CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है तो चढ़ जाएगी. उसकी मार्केट डिमांड क्या है? जब मैंने मार्केट में वेरीफाई करता तो मार्केट डिमांड क्या है उस हिसाब से किसी भी इनकम्स की अप्रोच में कोई आपकी दुकान हो या आपकी कोई संस्थान हो या कोई कंपनी हो, इवन जो कंपनी भी होती थी तो मेरे दिमाग में क्या था यार, इतने एम्प्लॉइज हैं, इतनी इनकी बैलेंस शीट चल रही है, उसमें से मैं डाटा उठा करके उसको मैं तब्दील कर देता. बट when I have realized, when I have read many journals, I have just gone to, I have connected to the many, some of the learned person, you can say, mentors, over mentors. इसमें हमारे आई एम जस्ट रेगुलर मिस्टर ताज साहब भी हैं. ही हैज़ गॉट दैट विजन. उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चलती रहती हैं कि हाँ भाई नई नई चीज़ें आ रही हैं, इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए. तो आई हैव लर्न, मैंने चीज़ें सीखी, फिर मैंने उन चीज़ों को इम्पैक्ट किया. मेरे दिमाग में आया कि रियल एस्टेट मार्केट में आई हैव जस्ट रीड एक मैंने जनरल भी पढ़ा, वेयर आई हैव टेक सरप्राइज कि जो मैं बीइंग ए प्रोफेशनल होकर के उस चीज़ को नहीं सोचता, एक रियल एस्टेट मार्केट में जो रियल एस्टेट का ब्रोकर है वो क्या चीज़ें सोच रहा. कम इन कॉन्टेक्ट विद एक हैदराबाद में ब्रोकर है, उनके संपर्क में मैं आया तो ही हैज़ गॉट इन डेप्थ नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स. इस चीज़ के विषय में उसको नॉलेज थी कि भाई हमारी जो बिल्डिंग है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कार्बन इमिशन कम है, CO2 इमिशन कम है, X, Y, Z, blah, 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 n number of things. The fellow has told me n number is dictated to narrated me out so many number of constraints which I have read in the books, in the journals. That means the real estate scenario is somehow getting changed. कहीं ना कहीं तो एक बड़ा, अब मैं रियल एस्टेट सिनारियो से ये बात नहीं कर रहा. I'm not talking of real estate scenario, छोटा प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ है वो हमें बता. रियल एस्टेट मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, पैन इंडिया लेवल, मैक्रो लेवल पे, नॉट माइक्रो लेवल
कि एक 4 ब्रोकर्स के पास मैं गया and I have just inquired the rates from that brokers और मैं समझ गया इस होती वो ब्रोकर ही डिसाइड कर रहा है वैल्यूएशन, that broker is deciding the valuation. But the investor, the regulator, the stakeholder, they are having team, the professional team of getting the results. They are having the professional team. उसमें इकोनॉमिस्ट भी होते हैं, उसमें आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, उसमें आप सिविल इंजीनियर्स भी होते हैं, जो they knows the impact, they said कि ठीक है, it is a green building certified building and social impact is very good and governance system is very high, तो वो उस हिसाब से उसकी कीमत जज करते हैं, प्रोडक्ट को नहीं जज करते हैं। जब तो इस तरीके से नहीं है 2000 रुपए स्क्वायर फीट हमने मारा परमिशन रिलेटेड और वैल्यूएशन दी, दादा ने लगा दे आराम से सुकून से बैठे। When I'm talking of 15 लाख रन किए हुए the governance, when I'm talking of governance, जब मैं governance की बात कर रहा हूँ तो मैं एक चीज जब देख रहा हूँ तो बिल्डिंग is following all the protocols of government, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रही है, सब कुछ फॉलो कर रही है, तो परमिसिबल एरिया के तहत ही तो कर रही होगी। अब मैं उसको क्या कहूँ, क्या 1500 रुपए 1500 रुपए 2000 रुपए 2500 रुपए दे के खत्म करूँ, या मैं I can see, I can study, I can give some benefits कि ये ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है, तो एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंसी देखो, एनर्जी एफिशिएंसी अच्छी है उसमें, क्या मैं वो पॉइंट्स वो भी ऐड करूँ अपनी वैल्यूएशन में या नहीं? Answer is you have to add that constraint. Instead of giving it out blindly कि 2000 रुपए फुट 1000 रुपए फुट 1200 रुपए फुट, मैं उसको कंस्ट्रेंट को ऐड करूँ। I'm working for that also and just having discussions with lot more the senior valuers also कि इस प्रकार की बिल्डिंग्स की वैल्यूएशन की स्ट्रेटजी का क्या फॉलो कर, अब कैसे देते हैं आप उनकी वैल्यूएशन, भाई जो एक एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग है उसकी वैल्यूएशन आप कैसे देते हैं जो सोशली भी साउंड है, ठीक है, मैं कैसे देता हूँ? So these are the few constraints which I have realized while choosing my topic for this webinar. तो कंक्लूजन में मैं क्या पहुंचा सर कि उन चीजों के कंक्लूजन में मैं क्या पहुंचा, बट आई हैव जस्ट क्या मैं कंक्लूजन में पहुंचा, आई हैव ड्राफ्टेड वन सिंपल कंक्लूजन, आई कैन रीड इट आउट। The role of ESG criteria in a property valuation. Role of a ESG criteria in a property valuation signifies a transformative shift towards holistic and responsible investment practice. I have said role of ESG criteria, the impact of ESG criteria, the role of ESG criteria in property valuation, transformative shift, which I have initially used. A paradigm shift, a transformative shift toward holistic and responsible investment practices, a safe investment practice. There is no risk mitigation. There is no risk mitigation. If you talk of a risk mitigation, if the building is following all the protocols of the government protocols follow कर रही है, तो रिस्क मिटिगेशन क्या है सर, रिस्क क्या है इसको? आज की डेट में डीजल गाड़ियां चल रही हैं, एक दिमाग में रहता है कल ये डीजल गाड़ी बंद ना हो जाए, पेट्रोल बंद ना हो जाए, सीएनजी आ रही है, आज सीएनजी हटा करके आ रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक आ रही है। जब मेरी बिल्डिंग भी सर्टिफाइड है, मेरी बिल्डिंग की इको फ्रेंडली है, मेरी बिल्डिंग भी सस्टेनेबल है, डेवलपमेंट भी सस्टेनेबल, रिस्क क्या है इन्वेस्टमेंट? आज के डेट का बायर जो है क्या कर रहा है, उसे एक सस्टेनेबल बिल्डिंग चाहिए। जब वो सारी चीजें मैं दे रहा हूँ तो गवर्नमेंट मेरे को इन्वेस्ट क्या करेगी? That's why I have written responsible investment practices. Right? As a stakeholder, increasingly recognize the interconnectedness of economic, environmental, and social factors.
एज ए स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग अकाउंट वी आर इन्वेस्टिंग, हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी बिल्डिंग में जो सस्टेनेबल है, सोशली साउंड है, सोशली साउंड व्यवहारिक है, सोशली साउंड है वो बिल्डिंग, उसकी लोकेशन भी अच्छी है, उसमें जो भी हम लोग में जो वर्कर्स चल रहे हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, मार्केट टेंडेंसी है तो वो अच्छी है। तो स्टेक होल्डर्स मिलेंगे या नहीं, रेगुलेटर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो मैंने आपको एक शब्द बोला था, amalgamation of ESG, amalgamation of ESG, environment, social and governance, environmental, social and governance, ये एक ट्रायंगल बना, environment ऊपर है, social इधर है, फिर आगे governance। अगर मेरा गवर्नेंस अच्छा होगा, शासन नीति अच्छा होगी, द मैनेजमेंट स्टाफ इज गुड, द मैनेजमेंट इज होल्डिंग द पोजीशन एट द कंपनी इज गुड, then only I can make it environmental impact आ सकता है, तभी उसकी सोच, right? So the integration of ESG, I have used a word, initially I have said the amalgamation of ESG. Now after amalgamation, integration हो, the integration of ESG consideration into property valuation, economics, environmental and social factor, the integration of ESG consideration property valuation technology is poised to become standard practice by embracing sustainability. ये नॉर्मल प्रैक्टिस में कमिंग सिनारियो में फ्यूचर आप ये देखिएगा, ये चीजें आएंगी, एक रिस्पॉन्सिबल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल चीज है, लेटर ऑन इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और बहुत ही हम और आप अच्छे इजीली एक्सेप्ट करते हैं। By embracing sustainability, I have written embracing sustainability with environmental, social responsibility, I have written it out in social impact, and good governance, I have written a good governance, good governance है, there are good governance की बात कर रहा हूँ, good governance means management system is strong, management system strongly reacted to the decisions, जो भी गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उस पर इजीली रिएक्ट करता है, जो अपनी कंपनी के लिए अच्छी चीजें हैं उनको तुरंत अडॉप्ट करता है एंड रिवॉर्ड्स देता है। In last I have written, just read this sentence, just try to get this sentence, the real estate industry can unlock a value if the building is ESG is following all the impacts of ESG के सारे इम्पैक्ट उसमें पॉजिटिव है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने रियल एस्टेट लैंडस्केप ऑफ रियल एस्टेट फैला हुआ है, रियल एस्टेट वो वैल्यूज को भी अनलॉक करेगा, बोलेगा वैल्यू भी आपकी बढ़ाएगा। बहुत से इन्वेस्टर्स हैं इन इंडिया, देयर आर लॉट मोर इन्वेस्टर्स, दे आर जस्ट कमिंग, उनको ये लगता है कि ये ESG सपोर्टेड है या इसके बेनिफिट्स है, रिस्क मिटिगेट, रिस्क कम है इसमें, वो इन्वेस्ट आएगा, जब इन्वेस्टर ज्यादा होंगे तो हमारी वैल्यू तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, unlock value, mitigate risk and contribute to more sustainable and inclusive future, मतलब the future is bright if the building is following ESG norms, ESG factors, तो हमारी future of that building is bright, that company is bright, that company has got a bright future, उसको जरूर इन्वेस्टर मिलेंगे, जरूर रेगुलेटर्स मिलेंगे, जरूर ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर मिलेंगे। आपको क्यों I have just said कि मैंने I have just talked to one of the broker there at हैदराबाद, मैंने टेलीफोनिकली मैंने गूगल किया था, I have just गूगल हैदराबाद में IT सेंटर है, वहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं उनका क्या बिजनेस। तो when I have talked to them,
वो मेरे को रियलाइज हुआ कि वो अगर कहीं प्रॉपर्टी में, अगर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, अपने क्लाइंट्स को ले जाकर के इन्वेस्ट कराते हैं, तो वो इस स्क्रूटनी को करते ही, दे आर स्क्रूटनाइज द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट लैंडस्केप। वो इस चीज को स्क्रूटनी करते हैं, दे आर हैविंग एडुकेट नॉलेज ऑफ दैट थिंग कि ESG भी कोई चीज है, एक अल्फाबेट ई है, एक ऐसे और जी है, इसका भी इम्पैक्ट है। वो इस चीज को पहले से स्क्रूटनी कर चुके हैं और उसके बाद ही वो बताते हैं कि भैया हमारी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग है और ऐसा ऐसा उसके अंदर चल रहा है, तो भाई कीमत तो है चीज की। सो भाई I think I have just initially when I got this topic, मेरे को जब इस टॉपिक के विषय में बोलने के लिए मेरे दिमाग में आया, I just मैं कल I was at खजुराहो में था और one of my project, I was visiting one of my site, तो मैं कुछ चीजें नोट कर रहा था, तब भी मेरे दिमाग में चीजें चल रही थी कि I have to talk of ESG के विषय में बात करनी है, तो मेरे दिमाग में चीजें चल रही हैं। भाई मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, मिस्टर अनुज जी हैज कॉल्ड मी हियर, एंड ही सेड कि चंद्रेश जी आप एक ब्रीफ दे दीजिए। आई हैव जस्ट रिटन ए ब्रीफ इन माय डायरी, आई हैव दिस डायरी विद मी, आई एम कैरिंग दिस डायरी विद मी, आई हैव रिटन इट आउट, जस्ट लुक एट दिस, आई कैन शो यू। I have written few points. Right? जहाँ भी मैं बैठा मैंने few points develop करे और I have just WhatsApp करा मिस्टर अनुज जी को और मैंने ये भी बोला कि whenever I can get the time I can in brief में और लिख दूँगा इस चीज़। I have got a मतलब to be very frank I'm just telling you I have got a one interest कि चीज़ों को समझने में, चीज़ों को सीखने में, इसी से भी अगर मुझे कोई सीख मिलती है तो नॉलेज शेयरिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल। इफ समबडी कैन से कि चंद्रेश जी आप यहाँ पे गलत हो, मैं 1 मिनट में गलती मानता हूँ, 1 मिनट में आई कैन इजीली सरेंडर इट डाउन, आई कैन इजीली सरेंडर, मे बी आई एम रॉन्ग, मैं हो सकता हूँ गलत हूँ, ठीक है, बट व्हाई नॉट आई कैन लिसन टू दिस फेलो आल्सो कि दिस फेलो इसके पास क्या अच्छी चीज है, मैं इससे भी कुछ सीखूं, क्या चीज है। किताबों तो मैंने पढ़ ली, मैंने किताबें तो पढ़ ली। आई एम गिविंग वन रेटिंग यू वन एग्जांपल कि सबसे पहले मैं आज से 8 साल या 10 साल पहले मैं एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने साइट पे कर रहा, यही रनिया में मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो the contractor has given me few points, सर ऐसे ना करिए, जो आपने बोरिंग करी है इसके साइड में आप यू ऑल नो कंक्रीट का वो लगाया, वहां से फिल्टर होकर इधर जाएगा उधर जाएगा ऐसे जाएगा। मैंने उनकी बात सुनी, मैंने उनको समझा, मैं 100% करेक्ट थोड़ी हूँ, मैंने तो चीजें पढ़ी थी, मैंने प्रैक्टिकली पहली बार आज से 10 या 12 साल पहले पहली बार मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ा हुआ था, मैंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग फर्स्ट टाइम अपने साइट पे आज से 12 साल पहले करा, तो मुझे चीजें समझ में आई, उसका इम्पैक्ट समझ में आया। उस एक लेमैन ने मुझे बहुत सी चीजें ऐसी सिखाई जो उसको मैंने सीखी और मैंने कोशिश करी कि मैं कुछ चीज सीखूं। आई कैन ग्रैस्प समथिंग फ्रॉम दैट फेलो, द फेलो इज सिटिंग देयर, ही माइट बी नोइंग सर्टेन सम गुड एस्पेक्ट्स, उसको पता होता, चीजों का पता होता है, उसने वो कर चुका है, उसने मुझे बताया, मैंने नोटिस किया, मैंने उन चीज़ों को करा और अच्छा लगा मुझे सीख। आज भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैं अपने फेलो वेलवर्स से भी पूछता हूँ, आप पूछ सकते हैं, मैं अपने फेलो वेलवर्स से वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, मैं अपने फेलो वेलवर्स से पूछता हूँ कि भाई, क्योंकि गलतियाँ मैं बहुत कर चुका अपनी लाइफ में, आई हैव डन लॉट मोर मिस्टेक्स इन माई लाइफ एंड उन मिस्टेक्स को करने के बाद ही मैं पता हूँ, मैं पढ़ा हूँ, मैं सीखा हूँ। This is my vision of delivering you these things
कि मैंने बहुत गलतियां करी अपनी लाइफ में कि वैल्यूएशन होती क्या है। वेरी मच थैंकफुल टू मिस्टर दास जी कि मैंने उनकी वैल्यूएशन रिपोर्ट्स पढ़ पढ़ के भी बहुत चीजें सीखी। रिस्पेक्टेड सर, मैंने बहुत सी चीजें सीखी। मैंने नाम देखा, मैंने फेम देखी कि आदमी ये कहता है कि दास साहब से वैल्यूएशन लोगे तो अच्छी होगी। क्यों? वाई? क्यों होगी भाई? क्योंकि उन्होंने कुछ चीज अच्छी करी हुई है तभी होगी। तो हम लोगों ने भी कोशिश करी, स्पेशली मी, आई एम जस्ट कंसीडरिंग हिम एज माय मेंटर। भले ही मैं डायरेक्ट नहीं पूछा, लेकिन मैंने उनकी वैल्यूएशन से सीखा, मैंने उस वैल्यूएशन को पढ़ा, मैंने उस मेथोडोलॉजी को पढ़ा। हाउ दैट फेलो कैन वर्क इट आउट वैल्यूएशन रिपोर्ट सो दैट द मार्केट एक्सेप्ट ये अच्छी। मैंने उस ब्रोकर से समझा कि जब मैंने उस ब्रोकर की स्थिति देखी कि वो ESG फैक्टर्स जो मैं किताबों में पढ़ करके आपको बता रहा हूँ, देख रहा हूँ, उस व्यक्ति ने मुझको स्पीक फॉरवर्डली बताया कि भैया जो दैट बिल्डिंग इज सिचुएटेड, इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, वो हमारी लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग है। दैट फेलो हैज सेड टू मी लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग। आई वाज शॉक्ड। लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग है मेरी, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफाइड बिल्डिंग। इसका मतलब साइट अच्छा। फिर मैंने उससे ये क्वेश्चन नहीं करा कि भैया तेरी सर्टिफाइड है या योर बिल्डिंग इज प्लैटिनम सर्टिफिकेशन या योर बिल्डिंग इज ए गोल्ड सर्टिफाइड बिल्डिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन यू हैव टेकन इट फ्रॉम द लीड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन टेकन IGBSC ये है, एसोचएम क्या क्या कहां से। एंड आई हैव गूगल्ड एंड स्टडीड द थिंग्स। मुझे समझ में आया कि हाँ ये नोज द थिंग्स, उनको समझने में क्या बुराई है, क्या बुराई है। This is the fact, this is my vision of believing in the things, and I can assure you whatever be the things I have taken, I have learned from my experience. I have come in contact with the person, I have come in contact with the companies, I have come in contact with my senior valuers, what they have delivered to me. I have just read the various journals, latest journals also, कि भाई कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। मैं ये सोचता था कि the person has said to paradigm shift, the fellow has said paradigm shift, the fellow has said paradigm shift. I just go into that in depth. I was trying to go into that in depth कि वो paradigm shift का मतलब क्या है, उस paradigm shift से कहना क्या चाहता है, क्या वो कहना चाहता है। उसमें लास्ट में paradigm shift लिखा है, वो कहना क्या चाहता है। Then I have realized the new way of looking something, नए दृष्टिकोण से चीजों को देखना मैंने सीखा सर। I have learned and I am always thankful whosoever come to my as a mentor, जो भी मेरी लाइफ में आया उसने मुझे सिखाया। I am thankful to them. Maybe I am wrong, but respected all my fellow valuers. My intentions are very clear and my intentions are very positive. I want to deliver it out, a thing which is new to the market, जो मैंने सीखा मैंने आप लोगों को बताया। एंड आई थिंक मे बी अगर मैं 5% भी अपनी चीज को एक्सप्लेन कर पाया तो मैं आपसे, अगर कोई इफ आई हैव डन सर्टेन मिस्टेक तो आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कैन टेक इट, करता है। Just I can translate my this views. So whosoever is listening to the IVA members, they can take the call and continue with their work. I was having all the things which is with me, the knowledge with me, I have shared it. Over to the IVA. Hello. No one is there. Hello. I think no one is there. No, I have just कुछ एक और सेंटेंस मैंने कोई और टॉपिक तो नहीं ले लिया मैंने, और का है एंड we can have a glass of water, right sir? I can have a glass of water. Hello.
जी कहाँ चले गए? चंदेल जी और हो गए टॉपिक। उब गए क्या? नहीं 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 जी, चंदेल जी का टॉपिक ये और भी है नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया हम लोगों के लिए। और क्योंकि उनका पहले जब मैं बोल रहा था तो आवाज नहीं जा रही थी, तो अगर हाँ जी, उनका हाँ जी, ऐसा ही इंट्रोडक्शन हुआ चाहिए था। तो मैं पढ़ दूँ। हाँ नहीं, अभी कहो तो इंट्रोडक्शन पढ़ता हूँ, और नहीं तो फिर आप धन्यवाद दे दीजिए। ठीक है, देख लीजिए कोई है कि नहीं अभी, मतलब सभी लोग हैं। अब सभी लोग तो लगता है ऑनलाइन होकर के ऑफलाइन ऑफलाइन हो गए। आवाज आ रही? हाँ आपकी आवाज आ रही नहीं, है? कुछ लोग हैं जो सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा है कि अपने आर्किटेक्ट चंदेश बैद साहब इतना अच्छा लेक्चर दे रहे थे, तो चंदेश जी बहुत ही सीनियर आर्किटेक्ट हैं और उनके पास बहुत सारी मेंबरशिप भी है इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की भी है, आईओबी की भी है, आईबीबीआई के भी मेंबर है, इनकम टैक्स से भी जुड़े हुए हैं, पीवीएआई से भी मेंबर हैं, काउंसिल ऑफ इंजीनियर एंड वेलवर के भी मेंबर हैं। अच्छा, उनका 24 साल का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स करने का। और उससे पहले वो 96 से लेकर 99 तक कोठारी एसोसिएट में जुड़े हुए थे, जो सीपी ऑफिस है उनका दिल्ली में, उसमें। और बी आर्किटेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया था 1995 में, और एमआर को उन्होंने किया 2010 में फ्रॉम आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जयपुर से। और उनका जो विजन फॉर द इंस्टीट्यूट था, to work for Kanpur Center to aware society and fraternity about the architecture profession with respect for awareness and betterment of IIA. यही उनका छोटा सा परिचय था, लेकिन उनके लेक्चर से आपको पता चल गया होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए हैं और अच्छी तरीके से अपने लेक्चर को बना के उन्होंने पेश कर दिया सबके सामने, जो भी उनको टॉपिक अलॉट किया गया था। तो ओवरनाइट थिंक किया और उसको बनाया, और उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे थे जो हम लोगों को पहले से कभी पता नहीं थे। ग्रीन बिल्डिंग और उन सब की चीज़ें पता चली। अगर वो थोड़ा सा चंदेल जी ये बता देते कि जो नॉर्मली मान लीजिए हम किसी बिल्डिंग को ऐसे ही नॉर्मल बिल्डिंग समझ के वैल्यू कर रहे हैं, और उसी को जो ग्रीन बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन अंतर कितना आता तो थोड़ा अच्छा होता। Sir, when respected Anand sir, when you do not, still I am working it out. I have just concerned many of the valuers, जो senior valuers हैं, हैदराबाद में मैंने कांटेक्ट किया, जिनसे मैं सीख रहा हूँ कि how do I work it out। मैं later on जरूर इस टॉपिक को उठाऊंगा और आप लोगों की मदद एक लूंगा कि किस प्रकार से ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड बिल्डिंग की वैल्यूएशन किस तरीके क्यों ज्यादा होती है। अभी तो मैं उसके इन डेप्थ गया हूँ और जरूर कोशिश करूंगा आफ्टर फ्यू डेज कि आप लोगों के साथ। हाँ ठीक है, उसका एक स्टैटिक्स मैट्रिक्स कुछ बने जिससे एक आइडिया मिले लोगों को कि 1 टाइम 2 टाइम्स 2.5 टाइम मतलब कितनी टाइम, क्योंकि बेसिकली क्या है कि स्ट्रक्चर में ही अपन कुछ चेंज करेंगे, और बाकी जो भी उसका अगर हो सकता है लैंड का भी कुछ चेंज होता हो मुझे पता नहीं, तो वो तो आप लोग जब बताओगे उसको ब्रॉडली तब हम लोगों को समझ में आए। तो इस तरीके से चंदेश जी ने जो जितना अच्छा से हम लोगों को ब्रीफली बताया सारी चीज़ों के बारे में, तो वो बहुत अच्छा था। और ओवर टू हमारे मिश्रा जी आ गए धन्यवाद देने के लिए। तो ललित जी अब आगे का कार्रवाई आप देख लीजिए क्या है। बिल्कुल सर। आए हुए सभी मेंबर्स का मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया लेक्चर चंदेश जी का सुना। रियली चंदेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करके आपने बनाया होगा, बहुत ही बढ़िया लगा। हमने पूरा लेक्चर सुना है आपका, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ऐसे शब्द आए जो हमने कभी सुने नहीं थे। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। कोशिश करी, नहीं, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश। जब आप बोल रहे थे तो हमारा माइक नहीं वो ओपन नहीं था, मैं बोल रहा था, आपका जवाब दे रहा था कि कोई है कि नहीं, हम लोग सब लोग सुन रहे थे।
तो नहीं वो भाई मैं नाम नहीं होता। हम लोग हैं, मैं चाह रहा था कि इस चीज को अगर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सपोज वी कैन हैव ए लॉट मोर, ज्यादा गैदरिंग होती तो उसको ज्यादा जो मैडम ऑफिसेस निकलता, जो निष्कर्ष निकलते बहुत अच्छे निकलते, काफी नहीं अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छा चैप्टर उठाया, बहुत अच्छा, वो बहुत ब्रीफली समझाया, बड़े प्यार से समझाया एक एक वर्ड, जो लोग मेरे हिसाब से सभी मेंबर्स ने बहुत अच्छी मतलब जानकारी मिली होगी। धन्यवाद सभी का, आप सभी आए और अच्छा सा मीटिंग अटेंड किया। धन्यवाद सर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। लोग फिर यहीं पे बैठ करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग हाँ, बारिश भी हो गई है, मे भी कोई इम्पैक्ट हो, कोई फंस गया हो कहीं। हाँ वही प्रॉब्लम ही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके सबके साथ लगा नेटवर्क हुआ था। प्रॉब्लम या कुछ। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ ना कुछ रहा, बात हुई सभी से। But anyhow, I am thankful to all my senior and all my colleagues whom they have listened to me, and I am always thankful to you. And all the queries are welcome. And give me your suggestions. आप लोगों की जो भी suggestions हैं जरूर बताइएगा. I am there to learn something. I am here to learn. So thank you very much, Mr. Dalpur, for your kind support. Thank you. थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।